قیامت سے پہلے کا وقت، ایک ایسا دور جب زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ آسمان بند ہوگا، بارش نہیں ہوگی، زمین خشک ہوگی اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ ماں اپنے بچے کو دیکھے گی مگر کچھ نہیں کر پائے گی۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ قبروں والوں کو خوش نصیب سمجھیں گے، اور پھر اسی ٹوٹی ہوئی دنیا میں ایک فتنہ کھڑا ہوگا۔ پہلے سرگوشی، پھر چیخ، قافلے آئیں گے خوف زدہ، ان سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہیں گے جو ہم نے دیکھا وہ بتانے سے پہلے کلمہ پڑھو۔ ایک شخص آئے گا، وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برس پڑے گی۔ وہ زمین کو کہے گا اور فصلیں اگائیں گی۔ وہ مردوں کو پکارے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں وہ سب دے گا جو تم نے کبھی چاہا، لیکن ایک شرط پر کہ تم اسے اپنا رب مان لو۔ کیا تم انکار کر پاؤ گے؟ یہ المسیح الدجال کا فتنہ ہے، مگر اسی وقت اسی زمین پر ایک اور شخص اٹھے گا، نہ تاج، نہ تخت، نہ لشکر۔ لوگ اسے پہچانیں گے بھی نہیں، مگر آسمان اس کے ساتھ ہوگا اور زمین اس کے قدموں کے نیچے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ دجال کون ہے، سوال یہ ہوگا تم کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ کہانی نہیں، یہ صحیح احادیث میں لکھا وہ سچ ہے جو آنا باقی ہے۔ قیامت سے پہلے کا دور، ایک ایسا وقت جب زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آئیں گے، ایک کے بعد ایک۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام تک ایمان کھو دے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح تک اپنا دین بیچ چکا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ہر طرف پھیل جائے گی، قتل معمول بن جائے گا، بازار روشن ہوں گے، عمارتیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی، مگر انسان اندر سے خالی ہو چکا ہوگا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھے گا، بیٹا تمہارا ایمان کہاں ہے؟ وہ نظریں چرا کر کہے گا، بابا مجھے خود نہیں پتا۔ لوگ تھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے ہم یہ وقت دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ اسی اندھیرے کے بیچ شام کی سرزمین سے ایک نام ابھرے گا، پہلے سرگوشیوں میں، پھر خوف میں، پھر چیخوں میں، سفیانی۔ وہ بے رحم ہوگا، ظالم ہوگا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوگا، تباہی۔ وہ نیک لوگوں کو قتل کرے گا، علماء کو مٹائے گا، اور اس کا لشکر دہشت کی علامت بن جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھے گا۔ خانہ کعبہ اس کا اگلا نشانہ ہوگا۔ لوگ چیخ اٹھیں گے، اسے کون روکے گا؟ کیا کوئی نہیں؟ اسی وقت مکہ میں ایک شخص موجود ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، نام محمد، والد کا نام عبداللہ۔ لوگ اسے پہچان لیں گے اور کہیں گے امام مہدی آپ ہی ہیں، ہمیں بچائیں۔ وہ پیچھے ہٹیں گے، میں اس قابل نہیں، مگر لوگ نہیں رکیں گے۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا ہاتھ پکڑا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی، اور اسی لمحے تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ سفیانی کا لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک صحرا ہے، بیدا۔ زمین خاموش ہوگی، ایک لمحہ، اور پھر وہ پھٹ جائے گی۔ پہلے سپاہی سے لے کر آخری تک پورا لشکر زندہ نگل لیا جائے گا۔ صرف ایک یا دو لوگ بچیں گے تاکہ وہ جا کر خبر دیں۔ یہ صرف ایک لشکر کا خاتمہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ کی مدد ابھی باقی ہے۔ دنیا بھر سے قافلے آئیں گے، شام سے، عراق سے۔ لوگ ایک ہی مقصد کے ساتھ نکلیں گے، بیعت، اور پھر زمین بدلے گی۔ امام مہدی عدل قائم کریں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن امن کا یہ دور زیادہ دیر نہیں رہے گا، کیونکہ پردے کے پیچھے ایک اور نام اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، دجال۔ امام مہدی کا دور
अभी शुरू ही हुआ था। जमीन ने पहली बार सुकून का सांस लिया ही था कि मशरिक से एक और तूफान उठा। अस्फहान, वहां से तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज जाहिर होगा, अल मसीहुद दज्जाल। उसके साथ 70,000 लोग होंगे। लोग उसे देखेंगे और रुक जाएंगे। उसकी एक आंख बेनूर होगी, दूसरी भी ऐबदार, बाल घुंघरियाले, जिस्म भारी, और उसकी पेशानी पर साफ लिखा होगा कफर, यानी काफिर। हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो एक गधे पर सवार होगा, ऐसा गधा जिसकी रफ्तार नाकाबिले यकीन होगी। वो जमीन पर ऐसे चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा करने जाती है। फिर वो रुकेगा, लोगों की तरफ देखेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। अब खुद को वहां रख कर देखो, तुम उसके सामने खड़े हो। तुम क्यों मानोगे उसे? वो सबूत देगा। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा, बादल जमा होने लगेंगे, एक लम्हा और बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को हुक्म देगा और सूखी मिट्टी सब्ज हो जाएगी, फसलें उग आएंगी। लोग देख रहे होंगे भूख से तड़पते हुए, और फिर उनके दिल टूट जाएंगे। वो एक शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? वो कहेगा हाँ। फिर 2 शैतान आएंगे माँ बाप की शक्ल में। वो कहेंगे, बेटा मान लो उसे। सोचो इस दिल पर क्या गुजरेगी जिसके सामने उसके मुर्दा वालिदैन खड़े हों और एक झूठे की गवाही दे रहे हों। दज्जाल के साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, मगर दोनों धोखा होंगे। जिसे वो जन्नत कहेगा वो असल में जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम में डालेगा वही निजात होगी। उसके पास खाने के पहाड़ होंगे, पानी के दरिया होंगे, और वो कहेगा, सब कुछ ले लो, बस एक शर्त पर, मुझे अपना रब मान लो। एक दिन एक नौजवान मोमिन उसके सामने आएगा। वो बुलंद आवाज में कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि तू वही दज्जाल है जिससे हमें खबरदार किया गया था। दज्जाल गुस्से से चीखेगा, उसे पकड़ो। उसे घसीटा जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, फिर पूछा जाएगा, अब मानते हो? वो कहेगा, तू झूठा है। दज्जाल हुक्म देगा और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। वो जमीन पर गिर जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, खड़ा हो जाए, और वो नौजवान दोबारा खड़ा हो जाएगा, मुस्कुराता हुआ। दज्जाल पूछेगा, अब मानते हो? वो कहेगा, अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया है कि तू ही दज्जाल है। इस बार दज्जाल बेबस होगा, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये नौजवान अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े शहीदों में होगा। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। वो पूरी जमीन पर फैलेगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते खड़े होंगे नंगी तलवारों के साथ। मदीना हिलेगा 3 बार, और हर कमजोर ईमान वाला वहां से निकल जाएगा दज्जाल की तरफ। दुनिया बदल जाएगी, अक्सरियत उसके सामने झुक जाएगी। शहर के शहर, मुल्क के मुल्क, और ईमान वाले मुट्ठी भर रह जाएंगे। वो पहाड़ों में पनाह लेंगे। भूख, प्यास, कमजोरी, और उनकी खुराक सिर्फ अल्लाह की याद होगी। आखिरकार दज्जाल दमिश्क के करीब पहुंचेगा। इमाम मेहदी और उनके साथी एक किले में मैसूर होंगे। बाहर लाखों का लश्कर, अंदर भूख, प्यास, मायूसी। मुहासरा तंग होता जाएगा, यहां तक कि उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाएगी, और इसी लम्हे आसमान से मदद उतरेगी। रात अपनी आखिरी हद को पहुंच चुकी थी। दमिश्क के किले के अंदर चंद सौ लोग बाकी थे। भूख, प्यास और आखिरी उम्मीद। बाहर दज्जाल का लश्कर था लाखों में, और अंदर मुट्ठी भर लोग। इमाम मेहदी उनके दरमियान खड़े थे। उन्होंने कहा, अब इंतजार कैसा? सुबह होते ही या शहादत या फतह। लोगों ने सर झुका दिए। ये उनकी आखिरी रात थी। फजर का वक्त करीब आ रहा था। अजान से कुछ लम्हे पहले आसमान बदला। एक नूर उतरा मशरिक की तरफ, सफेद मीनार के पास। 2 फरिश्ते
अपने परों पर एक हस्ती को थामे हुए आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वो जमीन की तरफ उतर रहे थे। लोग सांस लेना भूल गए। एक शख्स के हाथ से तलवार गिर गई, दूसरा सजदे में गिर गया और एक आवाज आई, अल्लाह की कसम ये नबी है। वो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम थे। किले के अंदर दिल बदल चुके थे, मायूसी खत्म हो चुकी थी। नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई। इमाम मेहदी आगे बढ़े, फिर रुके, पीछे हटे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, आप इमामत कराइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा उनके कंधे पर और फरमाया, नहीं, आप ही इमामत कराएं, ये जमात आपके लिए खड़ी हुई है। और इस तरह अल्लाह के नबी इसी उम्मत के एक फर्द की हैसियत से इमाम मेहदी के पीछे खड़े हो गए। फजर की नमाज अदा की गई। सदियों का इंतजार खत्म हो चुका था। नमाज के बाद दरवाजा खोला गया। बाहर दज्जाल खड़ा था अपने लश्कर के साथ, मगरूर। मगर जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी वो रुक गया। पहली बार खौफ में उसका जिस्म पिघलने लगा, जैसे नमक पानी में घुलता है। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वो मुड़ा और भागा। आज शिकार शिकारी बन चुका था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। दज्जाल भाग रहा था, हर कदम पर खौफ और हड़बड़ाहट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे थे। कदम ब कदम जमीन के हर रुख से उसकी शैतानी ताकतें कमजोर पड़ती गईं। आखिरकार वो फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचा, लुद के दरवाजे तक। ये वो जगह है जहां आज बिन गुरियन एयरपोर्ट है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रुका, पलट कर देखा और फिर नेज़े को आगे बढ़ाया। एक लम्हे की खामोशी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। नेज़े पर दज्जाल का खून था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दिखाया ताकि दुनिया जान ले कि यह सबसे बड़ा धोखेबाज हमेशा के लिए खत्म हो गया। दज्जाल के लश्कर में भगदड़ मच गई। यहूदी फौज शिकस्त खाकर भागे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे। जमीन और पत्थर बोल पड़े। दरख्त पुकारे, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, ये गद्दार छुपा हुआ है, इसे पकड़ो। सवाए हुरकद नामी दरख्त के, जिसे यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, हर चीज गद्दारों का पत्ता बता देगी। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को मारेंगे और जिजिया का निजाम खत्म करेंगे। जमीन पर सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। अब जमीन पर अमन और खुशहाली का दौर आएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। माल और दौलत इतना ज्यादा होगा कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। लोगों के दिलों से नफरत, हसद और कीना मिट जाएंगे। शेर और बकरियां एक घाट पर पानी पीएंगे और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे। कोई नुकसान नहीं। पैगाम, आपके लिए ये कहानी कोई ख्याली दास्तान नहीं बल्कि सच्ची हदीसों का खुलासा है। ये हमें बताती है कि ईमान का इम्तिहान कितना सख्त हो सकता है। जब अक्ल धोखा खा जाए, आंखें धोखा देखें और दुनिया की हर चमक दमक आपको गुमराही की तरफ ले जाए, सिर्फ वही शख्स खड़ा रहेगा जिसका ईमान पहाड़ों से मजबूत हो और जो तूफान के लिए पहले से तैयार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचाव का तरीका भी सिखाया। सूरत अन-कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात याद रखना और हर जुमा पढ़ना हिफाजत और नूर का जरिया है। ये पैगाम डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। इल्म हासिल करें, ईमान मजबूत करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इस सबसे बड़े फितने से महफूज रखे। आखिर में आखिरी सवाल, जब वो दिन आएगा, सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास क्या था, बल्कि ये होगा आप कहाँ खड़े थे, अल्लाह के साथ या उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ। फैसला आपका है।